अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। इस वक्त हम गुलाम मोहम्मदाबाद के टेक्सटाइल यानी कि पावर लूम सेक्टर के अंदर मौजूद हैं, जहां मज़दूरों की तरफ से एक एहतजाज किया जा रहा है और 12 इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में पावर लूम जो है वो शट डाउन हो रही हैं और लेबर मूवमेंट की तरफ से यहाँ लोग इकट्ठे हैं, मज़दूर इकट्ठे हैं। कह रहे हैं कि अगर जो फैक्ट्री चल रही हैं तो वो मरहलावार चल रही हैं या एक एक शिफ्ट चल रही है, ना कि जैसे पूरी कैपेसिटी पे चल रही थी। और हमारा जो कारोबार है वो इस वक्त शदीद मंदे में है, जिस बिना के ऊपर मज़दूर का रोज़गार जो है वो उससे महरूम होता जा रहा है। मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद टेक्सटाइल पावर लूम एंड साइजिंग इंडस्ट्री 1 लाख मज़दूर बेरोज़गार का दावा ये कर रहे हैं। पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट और हकूक़ खल्क पार्टी जाम कमाल साहब, मरीम नवाज़ साहिबा से इनकी अपील है, मज़दूर का रोज़गार बहाल करो के नाम से जो नारे हैं वो ये लगा भी रहे हैं और ये दावा लेके आए हैं। हाथों में बिजली के बिल जो हैं वो भी पकड़े हैं, बल्कि मज़दूर ने वो भी उल्टा पकड़ा हुआ है। ज़रा इसे सीधा कर लें। और वो कह रहा है कि हमारे पास बिल देने की गुंजाइश जो है वो भी मौजूद नहीं है। इससे पहले भी गुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर के अंदर, क्योंकि पावर लूम का एक बहुत बड़े कारखाने यहाँ मौजूद हैं, तो एहतजाज करते आए हैं। मज़दूर हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल हमीद। कब से काम कर रहे हैं? काफ़ी अर्सा से कर रहे हैं, 15-20 साल हो गए। और इसी जगह पे हाँ जी, इसी जगह पे। क्या हालात हैं इस वक्त? बहुत बुरे, बहुत कैसे? ज़्यादा बुरे। बिजली के बिल देख लो, इन्होंने तो लैला जान कड्ढी हुई है बिजली के बिलों ने। तो लूमा बंदा सारा कुछ बाना ताना छाट आ। हुकूमत इलैक्शन तो पहले कहते 300 यूनिट फ्री, 600 यूनिट फ्री, ਹੁਣ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜੀਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਆ। ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ 33,000 ਭਰਾਇਆ, ਮੇਰਾ 33,000 ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 33,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਾਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਖੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਏਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 1200 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਲੈ ਗਿਆ 2100 ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 15 ਕਿਲੋ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੂਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੂਮਾ ਮੈਂ 12 ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਹੁਣ 7 ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। 5 ਲੂਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਆ। ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਛਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਸੋਲਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਗੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰ ਟੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। मजदूर और इधर हाँ जी, वालेकुम सलाम। काम कर मैं मास्टर हाँ। ਮਾਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1990 ਦਾ ਲੱਗਿਆ। 1990 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਟੱਪ ਹੀ ਗਏ। हाँ जी, ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ कोई भी नहीं बनाया, किराए पे फिरते हैं। हले भी किराए? हाँ जी, हले भी किराए पे। 1990 ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਊਨ। ਵਜ੍ਹਾ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। 26,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 26,000 ਬਿੱਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਬੱਚੀਆਂ, 3 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਧਰਮ ਬਰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਆ, ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੂਮ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਮ ਛਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ 50-50 ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਣੀ ਲੂਮਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਜਾਓ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਲੂਮਾ ਚਲਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। 1990 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। लोग और मजदूर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੇਬਰ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨੇ 36000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ, 21527 ਰੁਪਏ ਇਸ ਦਫਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੂਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹਾਂ। ਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ 2-2000 3-3000 ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਤਲੁਕਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੂਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਚੱਟੂ ਬੱਟੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ IMF ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਆੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਿਆਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਮੈਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮਹੀਨਾ ਐਤਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਮਾਲਕ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਓ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 4 ਕੀ ਕਰਦੇ? ਛੋਟੇ ਆ ਜੇ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪੜਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਘਰ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਵਿਹਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਦਾ 30-35,000 40,000 ਰੁਪਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ 10,000 ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, 5,000 ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਖਰਚਾ ਲਈਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਾਵਰਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਾਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਈਏ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। 14 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਦੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ 201 ਯੂਨਿਟ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ। ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਰਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮਗਰ ਉਹ ਬਜਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੰਦਮ ਦਾ ਮਸਮੂਈ ਬਹਿਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 400-500 ਰੁਪਈਆ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਥੈਲੇ ਮਗਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 300 ਤੋਂ ਕਮ ਰੇਟ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ HP ਕੰਮ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 600 ਤੋਂ ਕਮ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੀਦੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਜੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਲਾਵਾ ਪੱਕ ਰਿਹਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਊਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਰਅਮਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਝਿੜਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਰੋਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸੈਲ ਨੇ। ਤੇ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। मजदूर और मौजूद है। वालेकुम सलाम। खुर्शीद अहमद। खुर्शीद कितने साल तो काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 25 साल तो काम कर रहा लूमा लूमा ਦੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੂਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? 8 ਲੂਮਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 5 ਲੂਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਲੂਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੀਮ ਸ਼ਾਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੀਮ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ, ਮਾਲਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਆ ਇਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਮਾਲਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਆ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਚ, यानी कि चंद हैगे आ। वो ये कह रहे हैं कि चंद मालिकान ये कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, हालात को मुश्किल बनाया जा रहा है, जबकि दिखाया जा रहा है मुश्किल ऐसा नहीं है। और चंद ग्रां फरोश जो हैं वो इसमें सरगर्म हैं कि मज़दूर का हक़ खाने के लिए सिर्फ अपनी लेबर शॉर्ट कर, अपना जो टाइम है उसे शॉर्ट कर रहे हैं, दिन में चलानी है, रात को नहीं चलानी। इवन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा। वालेकुम, मोहम्मद शकील। गिल साहब कितने साल तो कर रहे हैं? आज 20 साल से कर रहा हूँ मैं। की हालात है? हालात पहले से बदतर हैं। एक बात कहना चाहूँगा कि जितना ही मज़दूर को दबाएंगे उतना ही आवाज़ बुलंद होगी उनकी। और हमेशा की तरह जब भी रेटों की बात आती है, मामला आते हैं, ऐसे ही मामला चलते हैं। मालिक जानबूझकर बहरान पैदा कर रहे हैं। मैं अच्छा, आपके ख्याल में शकील साहब एक सवाल करूँगा, मालकान कर रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है, मालकान कह रहे हैं जी हमसे इतना रेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ना हम करेंगे। हालात जैसे कि उस नौजवान ने कहा, ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब कीमतों में इजाफा या रेट में इजाफा होता है, उससे पहले बिल्कुल सारा दिन सारा साल सुकून से चलता है। नहीं, हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना। हुकूमत से तब कहना या हुकूमत हमें नज़र आती हो, हुकूमत नाम की कोई उनकी पॉलिसियाँ गलत है, उसकी वजह असर ज़रूर पड़ा है। मगर जो इंडस्ट्री हमारी है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसमें मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, जानबूझकर परेशान कर दिया गया है। वक्त पड़ता है, बीम आते हैं, शार्टेज होती है, जब चाहे कपड़ा सेल होता है, बाद में बीम भी आते हैं, पावर लूम चलती भी है। मगर जब रेट की बात होती है तो वहाँ पे बहरान पैदा किया जाता है। इस पे हम पुरज़ोर आवाज़ उठा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान लेबर कौमी मूवमेंट एहतजाजी अमल कैसे एहतजाज करती है, और इंशाल्लाह बेहतर हालात करेंगे अपने फैसलाबाद के बुजुर्गों में। अली साहब, आप क्या कहेंगे कि हालात वाक़यात, क्योंकि कुछ हमारा भी हालात में थोड़ा तल्ख सवाल कर लेता हूँ, हम भी कुछ रोना धोना ज़्यादा कर देते हैं, रोना धोना ज़्यादा है, ये हालात सच्ची ऐसे हैं कि रोना धोना जायज़ हो रहा है। जी शुक्रिया बिलाल डोगर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमारी आवाज़ को ऐवान वाला तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी है सहाफ़ती, आप बहुत खूबी अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो मामला है ये मिसमैनेजमेंट का है। गवर्नमेंट को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है कि ग्राउंड में क्या हालात चल रहे हैं। आप यहाँ आए, आपने हालात देखे, आप हमारी ऐवान तक बात पहुँचाएँगे, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर गवर्नमेंट भी
वो अपनी कमेटियां बनाए, अपनी जो ज़्यादा अदारे बनाने की बजाय जो अदारों पर फोकस करती है, अपनी जो पुराने अदारे हैं उनको फ़ाल करे, और फ़ाल करने के बाद लेबर डिपार्टमेंट में जो अफसरान एसी के नीचे बैठते हैं वो ग्राउंड में आए, लोगों के हालात देखें, और जब बजट बने तो बजट बनने के साथ जो पॉलिसियाँ जो वर्कर की मौजूदा पोजीशन के मुताबिक बनाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये बिल्कुल ही एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पर जान डालने के लिए आपको बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ जो सनतकार है, जो फैक्ट्री ऑनर है, इनकी तालीम और तरबियत का मसला है। 40 से 50% जो फैक्ट्री ऑनर हैं वो अनपढ़ जाहल हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इंसानी हकूक़ क्या होते हैं। इंसानी हकूक़ की आवाज़ अगर हम बुलंद करते तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप लोगों ने आप नजायज़ करते हैं। हर इंसान का हक़ है जो इस मुल्क में रहता है, आज़ाद शहरी है, उसका हक़ है कि उसको जो सोशल सिक्योरिटी और जो भी मामलात हैं, EBI सब मिलना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की बात करें, जो मरीम नवाज ने दिया वो सबको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की बात करें तो 10 लाख मजदूर हैं यहाँ आप हमारे फैसलाबाद में, इसके 2 लाख से कम बेश 2 लाख के सोशल सिक्योरिटी कार्ड हैं, उसमें 1,49,000 से कुछ जो परमानेंट लोग हैं उनके 300 बेड पर मुश्तमिल सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है। और हमारे कोई उस अदारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जब से बना है वो 300 हो गया, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। अलाइड हॉस्पिटल हमारे नज़दीक है, मजदूरों का वहाँ कोई ऐसा सेक्शन नहीं बनाया गया। जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ मजदूरों का कोई ऐसा अलग से एक डिपार्टमेंट नहीं है। कार्डियोलॉजी में चले जाएँ, हमारे मजदूर वहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कुछ सिफारिश मिले हमें, हम जहाँ एडमिट हों। इसीलिए मजदूरों को सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कार्डियोलॉजी में अलग से एक उनके लिए जगह मुख्तस हो, अलाइड में अलग से हो, जनरल में अलग से हो। अब आ जाएँ बात महंगाई की, तो इतने हालात बुरे कर दिए गए हैं कि जो मैनेजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पेस्को में बैठते हैं, जो डायरेक्टर साहिबान बैठते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है कि अवाम में जो बिजली के फिक्स रेट हैं, फ्लैट रेट हैं, वो किस अंदाज से लागू करने हैं। और इसके अलावा उनको ये एहसास ही नहीं है, एसी के कमरों में बैठकर आप एक पंखे वाली जगह का अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एसी वाला बंदा जो है उसको अपने हालात का पता है, जो पंखे के नीचे बैठने वाला बंदा है उसको अपने हालात का पता है। इसीलिए मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि आप मिस मैनेजमेंट को बेहतर करें, अदारों को ज़्यादा ना बनाएं, जो अदारे हैं इनको बेहतर कारकर्दगी करें। मजदूर एक और फिर बाबा जी की तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहद अली शाहद अली की हालात आ, किन्ने सालों तो काम कर रहे? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਸੈਨਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਵਕਤ, ਪੂਰੇ ਸੈਨਾਬਾਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਨਾਬਾਦ 'ਚ। ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਨੇ। 8 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ 6 ਲੂਮਾਂ ਦੇ, 8 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਉਣਾ। ਘਰ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨੇ, ਉਹੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਈਦਾ, ਉਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਲਈਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਫੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਆ। ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 22,000, 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ 5 ਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਸੈਨਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ इंशाल्लाह। बाबा लतीफ़ साहब मौजूद हैं, चेयरमैन है लेबर कौमी मूवमेंट के। बाबा जी क्या हालात वाक़यात ये हैं, बड़े संगीन बता रहे हैं कि यहाँ मालकान, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मालकान की ये गफलत है जिसमें वो ज़ाहिर कर रहे हैं, चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है, गवर्नमेंट उस पर खाबे खरगोश के मज़े ले रही है कि वो इनको जुर्माने, सजा या कोई भी एक्शन नहीं ले रही, कि ये पे नहीं कर पा रहे। क्या सूरत हाल है आपकी? एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी बनी थी पहले, कहाँ तक मामला? जी बिलाल डोगर साहब, पहले तो आप एक्सपो देख के आए, यहाँ के सारे सनतकार अपनी अपनी जो चीज़ें बनाते हैं। लाहौर में नुमाइश लगी है, आप 3 दिन वहाँ पे रहे हैं, आप देख के आए हैं कि सनतकार को तो फ़ायदा होता है जो ब्रांड बनाता है। जो लोकल स्मॉल इंडस्ट्री है हमारी, जो लाखों लोगों को रोज़गार देती है, ये जो हमारे मिनिस्टर साहब जहाँ पे मैंने दिखाया आपको, ये मिनिस्टर साहब हैं जाम कमाल साहब, इनको बलूचिस्तान से उठाकर वज़ीर सनत व तजारत बना दिया है। लेकिन मुझे बताया जाए कि जिसको ये पता ही नहीं कि नीचे छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को रोज़गार देती है, वो आज तक किसी चैम्बर में नहीं आए, वो आगे किसी फैक्ट्री मालकान को नहीं मिले कि आपके हालात कार क्या हैं। इसी तरह जो पंजाब के वज़ीर सनत हैं वो भी इसी तरह उनकी सूरत हाल है, उनको कोई परेशानी हाल नहीं कि हमने क्या पॉलिसी बनानी है। जब तक छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो कि लाखों लोगों को रोज़गार देती है उसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा,
तो तब तक ये इंडस्ट्री नहीं चली। पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, यहाँ पे पावर लूम की जो सनत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसके साथ साइजिंग चलता है, स्पिनिंग चलती है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, प्रोसेसिंग है। हर जगह पे 2-2 शिफ्टें बंद है, एक शिफ्ट चल रही है और मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं। ये जो हुसैनाबाद की बात कराई है, ये हकीकत में हर घर के जो 3-3 माह के बिल हो चुके हैं, क्योंकि जब सिर्फ 6-6 घंटे लूम में चला के जाएंगे तो ये घर का राशन पूरा करें या वह करें। बिजली के बिलों में इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए हैं, ऊपर से ये अब पैदल आना शुरू हो चुके हैं। रोज़ाना रात को पेट्रोल का टीका लगाया जाता है, रात को 12 बजे पेट्रोल बम गिराया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। अब ये कह रहे हैं कि हम शायद सुबह दोपहर शाम कर देंगे फिर ही ये कौम जागेगी। हम पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी नहीं कर सकते। आज बलूचिस्तान के हालात देख लें, KPK के हालात देख लें। हम चाहते हैं कि अमन का पैगाम हम देना चाहते हैं। पंजाब के लोग भी पुरअमन तरीके से सब लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन जो खास तौर फैसलाबाद का मैनचेस्टर है, यहाँ पे मालिक बिल्कुल साथियों ने कहा कि रेट का मसला है। रेट तो पंजाब हुकूमत ने हमारी तनख्वाह में सनती और कमर्शियल जो पंजाब के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद मजदूर काम करते हैं, उनका कोई गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, बल्कि उनका नोटिफिकेशन ही ख़त्म कर दिया। ना भट्ठा मजदूर की उजरत बढ़ेगी, ना पावर लूम की, ना टेक्सटाइल वर्कर की, ना सेलर पे काम करने वाले की, ना शुगर मिल में काम करने वाली, ना बड़े बड़े प्लाजों में, बड़े बड़े मार्ट पे काम करने वाले किसी मजदूर की तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। ये मरियम नवाज़ की पॉलिसी है कि जिसके पास 10,000 बंदा काम करता है, अगर 5,000 रुपया सैलरी बढ़ेगी तो उसका तो बनेगा महीने का 50 लाख। वो 12 महीने पे कैलकुलेशन करेगा तो मेरा तो 6 करोड़ रुपया जाएगा मजदूरों को। उन्होंने फैसला किया, बड़े सनतकारों ने, वो 1-1 करोड़ रुपया देंगे तो 100 बंदा 1 करोड़ रुपया जाके चीफ सेक्रेटरी को देगा, तो हमारे तो सारा कुछ ख़त्म। और मजदूर मरता है तो मरे। और इतनी महंगाई हो चुकी है, आने वाले दिनों में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे जो मुश्किल है, हमारे मजदूर आते हैं गली मोहल्ले के कोनों पर, वार्डन 6-6 बंदे खड़े हुए हैं। अभी हम आपके साथ विला करेंगे, 6-6 वार्डन खड़े कर दिए जाते हैं। पिछले दिनों हमारे एक मजदूर ने अपने बच्चे को आगे बैठाया हुआ, उसने कहा बच्चा उतार के मुझे दे जाओ और 2,000 रुपये लेके आओ, जबकि उसकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। वो हमारे दफ्तर रोता हुआ आया कि जी हम क्या करें, मैं 2,000 रुपये कहाँ से लेके आऊँ, फैक्ट्री बंद है, मेरी फैक्ट्री को ताले लगे हुए हैं, मेरा बच्चा ट्रैफिक वार्डन है वहाँ पे डेरा साईं चौक में बिठा लिया है। तो ये हालात जो है आने वाले दिनों में बदतर हालात होते जा रहे हैं। इस पर हम बताना चाहते हैं पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, कि फौरी तौर पर फैसलाबाद के अंदर कमेटी बना के भेजी जाए, यहाँ की पॉलिसी चेक की जाए, छोटी से माल इंडस्ट्री को रिलीफ दिया जाए। फैक्ट्री मालकान का इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो मजदूर का चूल्हा जलेगा। हम बिल्कुल इजाफा तो लेंगे तनख्वाहों में इजाफा तभी होगा जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। बाबा लतीफ़ ने बहुत तफसील के साथ चीज़ों को एलेबोरेट कर दिया कि हालात वाक़यात ये हैं कि लोग एहतजाज पे नहीं बल्कि लोग एहतजाज पे ऑलरेडी जबरन आ चुके हैं, क्योंकि एक वार्डन ने एक चलान करता है तो बच्चे को बिठा लिया जाता है कि फिर चलान के जो पैसे लेके आओ, बच्चा ले जाओ। इस हालात पे जब चीज़ें आएंगी तो ये कह रहे हैं कि कसम पुर्सी की हालत है। यहाँ मालकान दनिस्ता तौर पे फैक्ट्रियाँ बंद करके जो है वो अपनी बचत कर रहे हैं और हमें धकेल रहे हैं कुएँ के अंदर। अब इसके ऊपर मालकान का भी मौक़िफ़ लेंगे कि आखिर वो इस पर क्या कहते हैं कि उनकी तरफ से कि गफलत कोई ऐसी चीज़ की जा रही है, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है, जबकि इनकी तरफ से गवर्नमेंट के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। इनकी ज़ुबानी कहा गया है गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वहीद खालिक रामे मौजूद हैं और पावर लूम ओनर मौजूद हैं, मकसद शहजाद मौजूद है माज़र जंग से, और बहुत बड़ा सेक्टर है। अब मज़दूरों के आपने गिले शिकवे सुन लिए, वो कह रहे हैं कि मालकान दनिस्ता तौर पर पावर लूम्स बंद करते हैं रेट ज़्यादा देने की बजाय। अब इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। रामे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शहजाद साहब आपका भी, क्या वजह है कि आप लोग साल के इन अयाम के अंदर जब गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाती है वहाँ पावर लूम बंदी शुरू कर देते हैं, शॉर्टेज शुरू कर देते हैं। इस वक्त आप लोगों की तरफ से आवाज़ें ये आ रही हैं कि हमारे साइजिंग बंद हो रहे हैं, पावर लूम बंद हो रही है, मजदूर कह रहा है मुझे दनिस्ता बेरोज़गार किया जा रहा है और हज़ारों के बिल आ रहे हैं, हम कहाँ जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो हकीकत पर मबनी बात नहीं है। जितनी भी फैक्ट्रियों को ताला लगा आज से 4 साल के दौरान, वो फैक्ट्रियाँ दोबारा चली नहीं। इंडस्ट्री जो होती है ये 24/7 चलने के लिए होती है, और इस वक्त जिस तरह के हालात पिछले 3 माह से हैं, शायद ये 3 साल में इतना क्राइसिस आया नहीं। आप भी देखें हर तीसरी फैक्ट्री जो है वो बंद है या वो 12 घंटे पे चल रही है। तो मालकान ने इसलिए तो फैक्ट्रीज नहीं लगाई। और ये भी कोई बात नहीं है कि हम अपने मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे। हमारा और लेबर कौमी मूवमेंट का गुज़श्ता
15 साल से एग्रीमेंट पे साइन होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों इकट्ठे होकर सेक्टर टू सेक्टर जाके उनकी सैलरीज़ को वेजेस को बढ़ाते हैं। और इस दफ़ा भी ऐसी नहीं है बात कि हमने फैक्ट्रियां बंद की हैं। हम फैक्ट्रियां क्यों बंद करेंगे? हमें अंदाज़ा है, आपके साथ भी, हर मीडिया के ऊपर भी हम आके पहले अपने वर्कर की बात करते हैं। आपने हमें देखा जब फाइनेंस मिनिस्टर आए तो हमने यही बात की कि हमारा वर्कर भी बेरोज़गार हो रहा है, क्योंकि उनको तो बेचारों को कोई करियाने वाला जो है वो 5 किलो आटा भी उधार नहीं दे रहा। हम उनके साथ ही खड़े हैं। लेकिन और इस वक्त वर्कर को भी अंदाज़ा है कि हर फैक्ट्री के अंदर बीम शॉर्ट हैं, नई बीम टाइम पर आ रहे, धागे का रेट ज़्यादा है। कपड़ा क्यों हमारा मसला है कि पाकिस्तान में तकरीबन 45 हज़ार टन जो है वो कपड़ा जो 4 से 5 करोड़ मीटर महाना बनता है वो पाकिस्तान में डंप हो रहा है। हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी बताया कि आप इसको रोकें, जान आपका जो है वो डंप हो रहा है। इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है इसको तहस नहस होकर रह गई है। जो 35 लाख रुपए की लोगों ने एयरजेट लूम लगा के लाई थी, जो उन्होंने शटलेस लूम लगाई थी, वो लूम्स जो हैं वो बंदिश का शिकार हो गई हैं। वो एक्सपोर्ट की बजाय लोकल माल बनाने लगी हैं। तो बेचारी पावर लूम्स का इसी तरह है कि ये 1,75,000 लूम रह गई थी 3 लाख में से, अभी वो भी बंदिश की तरफ जा रही है। और आप देखें गुलाम अहमदाबाद में हर तीसरी फैक्ट्री बंद है, सदार में, जंग रोड के ऊपर, जंग सिटी के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद हैं। ख़ुद मुझे बाबा लतीफ़ साहब ने बताया कि जो कमाले के अंदर फैक्ट्रियाँ बंद है, एक फैक्ट्री चल रही है। हमारे भी मेंबर से ही बताते हैं। आप जाके हमारी इस बात को फेस्को के जाके जहाँ पे उनका वो चल रहा है लोड का बोर्ड, वहाँ जाके देखें कि 100 मेगावाट जो आईडी फीडर्स पावर लूम्स के हैं वहाँ पे कंजम्पशन कम है। तो हम अपने मज़दूर भाइयों के साथ भी हैं। फैक्ट्री मालकान जो पहले गाड़ियों में आ रहे थे वो मोटरसाइकिल ले ली उन्होंने, जिन्होंने अपने प्लाट अपने बेचते बेच के छतों के ऊपर सोलर लगवाया, वो सोलर भी अब काम नहीं आ रहा। उसके ऊपर भी FBR ने इतने नोटिस भेज दिए उनको, FBR के ने सोलर के ऊपर जिन्होंने सोलर लगाए थे 100 KVA के, उनको भी नोटिस आ गए कि भाई सोलर के साथ आपकी प्रोडक्शन आप सही अपनी स्टेटमेंट नहीं भर रहे, जो इनकम टैक्स रिटर्न है। इतनी मुश्किलात हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स को FBR के नोटिस आए हैं माह जून के अंदर। तो इतनी मुश्किलात के अंदर आके हम क्यों अपने वर्कर्स का गला घूंटेंगे? हम उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए भी दुआ है, हमारे लिए भी वो दुआ करें कि ये कारोबार चले। तनख्वाहें बढ़ाना इशू ही कोई नहीं है, हर साल बढ़ती हैं। हम बाबा लतीफ़, उनकी पूरी टीम और बाकी हमारी जो लेबर यूनियंस हैं, बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं। उनकी मीटिंग में भी गए हैं, इंशाल्लाह वो हमें बुलाएंगे। एहतजाज उन्होंने किया घंटाघर में, हमें बुलाते, हम भी जाते हैं उनके पास। आज भी तैयार हैं हम। इस इंटरव्यू से पहले भी मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को भी कहा कि आप उनको हमारा हज़ारे यकजहती दें। हम साथ खड़े हैं। ये कारोबार बचेगा, फैक्ट्री बचेगी, फिर ही मालिक है फैक्ट्री का, फिर ही मजदूर है फैक्ट्री का। ये बात इनकी 100% राइट है। मैं कहता हूँ तो हमेशा अपनी इब्तदाई के अंदर फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान 3 नामों से पहचाना जाता है, सनत, ताजर और मज़दूर से। सनत के साथ सनतकार है, मज़दूर के साथ सनत चलती है, और जब ये दोनों चलते हैं तो ताजर का ही तिजारत चलती है, कपड़ा आता है। शिदार साहब मौजूद हैं। शिदार साहब, जंग के हालात क्या हैं वहाँ भी? क्या हालात असर नो ख़राब हैं या अभी मामला चलते हुए नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन मसाइल को लेके जो है वो हमारे पास भी आते हैं और मज़दूरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात की मैं तस्दीक करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि एक बात आपने हमसे एक एतराज़ किया कि जब तनख्वाहें बढ़ती हैं तो फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाती हैं। एक मालिक के लिए उसकी जो फैक्ट्री है वो उसके बच्चे की तरह होती है। बच्चा रोता हुआ तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन चुप हो जाए तो परेशानी होती है कि चुप क्यों हो गया है। अब हमारी फैक्ट्रियाँ चुप पड़ी हैं, लेकिन मैं आपकी ये जो सैलरी वाली जो है ना, इस पर तस्हीह करना चाहूँगा कि मेरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन 70% से 30% पे आ चुकी है। इसके बावजूद मैंने अपनी साइजिंग फैक्ट्री में तनख्वाहें इसी मंथ बढ़ाई हैं। तो ये आप मेरे रिकॉर्ड पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मालिक को कोई शौक़ नहीं है कि किसी का हक रखे, लेकिन आखिर हमने भी ज़िंदा रहना है। हम अपनी फैक्ट्रियों में कब तक अपना कैश बर्न करते रहेंगे? तो गुजारिश यही है हुकाम बाला से कि इसकी तरफ ख्याल किया जाए, इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारी जो फैक्ट्री 12 घंटे चल रही है, हम वो भी सोच रहे हैं कि उसको 8 घंटे के प्रोडक्शन पे ले आएं। ये हालात है। बंदिश की वजूहात क्या हैं? ये स्क्वीज़ क्यों हो रहा है कारोबार, जबकि इसके पीछे वाले महरकात को डिस्कस करना चाहिए, मज़दूरों को बताना चाहिए कि जो आप लोग बारहा कहते हैं कि जो कपड़ा डंप हो रहा है, ग्रे क्लॉथ डंप हो रहा है, यौन डंप हो रहा है। यहाँ स्पिनिंग वाले कह रहे हैं जी यौन बेतहाशा आ रहा है, जबकि 18% सेल टैक्स भी लग चुका है।
सर जी, इसकी मेन वजह ये है कि एक्सपोर्ट्स पे कोई ध्यान नहीं है। एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड कंट्री अगर कोई बनता है तो फिर ही उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। हम इंपोर्ट ओरिएंटेड बन गए हैं। कैसे कपड़ा डंप हो रहा है और धागा डंप हो रहा है। शुरुआत कैसे हुई, जब धागा आना शुरू हुआ तो हमारे रामे साहब ने अपने हुकामा वाला से ये सारे एतराज़ात लगाए कि इसको रोका जाए, वो नहीं रुका तो अब प्योर कपड़ा आना शुरू हो गया। रॉ कपड़े के बाद अब प्रिंटेड वैल्यू ऐड आना शुरू हो गया। तो यानी कि जब वो मार्केट में इतना माल हो जाएगा तो लोकल प्रोडक्शन तो वैसे ही जो बिजली की रेट ज़्यादा होने की वजह से वैसे ही जो हमारी जो है ना वो कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे। बिल्कुल सही है, ये बात इनकी बिल्कुल सही थी कि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि रामे साहब ने उस दिन वहाँ एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो ये धागे वालों को बता रहे थे कि आज हम आपके साथ खड़े हैं तो वैल्यू एड वाले आपके साथ नहीं खड़े, कल उनके ऊपर जब आएगी तो वो भी चीखेंगे। और ये हुआ। अब आहिस्ता आहिस्ता सब इसके दायरा कार में आ रहे हैं कि 18% सेल टैक्स लगने के बावजूद बैरून मुल्क से आने वाला कपड़ा सस्ता यहाँ डंप किया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत कम है वो ज़्यादा ज़रूरत पे मंगा के इन सब प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा है, जिस बिना के ऊपर मसाइल ये कह रहे हैं जन्म ले रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग देना होगा, इंपोर्ट को कम करना होगा ताकि हम बेहतर और मौसर अंदाज में आगे बढ़ सकें। और हम मज़दूर के साथ हैं, हर हद तक साथ हैं, उसके साथ खड़े हैं, खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर कोई नहीं तनख्वाह दे रहा तो वो गलत कर रहा है। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।